Hello dear students, here we are discussing the part in continuation of the reactions of the continuation part is amines. Reactions of amines. Here the first reaction, a reaction with, we know that this is the amines are this in general these three types of amines: primary, secondary and tertiary amines. Is first reaction, the reactions of amines, reaction with alkyl halide, So that is the first reactions of amines, reaction with alkyl halide. If we are having the starting reactant molecules, that is the primary amines. So that the primary amines, you can take the particular specific reaction, that is CH3 CH2 NH2. This is nothing but primary amines. If it is react with, this is what CH3Cl or CH3Br, methyl chloride or methyl bromide. So in presence of basic condition, as we can take, this is the potassium hydroxide. So what happen here? Formation of, this is the formation of CH3CH2, again here the CH3 atoms, again one of the hydrogen atom is released. This is the loss of hydrochloric acid. You can take this basic condition as when you are writing, this is nothing but only base simple. So what happen there? Formation of the secondary amine. Again if it is treated with, this is again the methyl chloride or methyl bromide. So again minus HCl hydrochloric acid and generation of, this is the N dimethyl. This is what N dimethyl ethane amine. Here the formation of N dimethyl ethane amine. So again next in reaction, this is most important here, N dimethyl amine, it is formation of the tertiary amine. Actually the reaction is starting from here. If it is reacted with again the methyl chloride, यहाँ पे हमने और एक मेथिल क्लोराइड इससे रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर हाइड्रोक्साइड. So it is most important reaction. This is the methyl chloride is reacted with the silver hydroxide. Their generation of whatever here CH3 again one of the CH3 atom is here. This is nothing but CH2 and CH3. This is formation of the quaternary ammonium salt. This is the quaternary ammonium hydroxide. यहाँ पे क्या जनरेट हुआ? क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे जनरेट हुआ. दिस टाइप्स ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्मेशन ऑफ द क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो यहाँ पे क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड नेक्स्ट व्हाटएवर, दिस हाइड्रोक्साइड एक्ट एज अ base. Whatever, this is a take proton from these types of the carbon atom. इस कार्बन से वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा. This types of the carbon is nothing but what a beta carbon atom. जैसे ही इस कार्बन से वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, so that is going to the formation of the carbon ion CH3, CH2 CH3 and CH3. There is a formation of such types of the species. Again whatever, the last step is, this is nothing but a beta elimination. यहाँ पे ये लॉस हो जाएगा. द बॉन्ड ब्रेक बिटवीन द कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम एंड हियर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2 अगेन trimethyl amine. So this types of the product is formed. This is nothing but ethene. यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ इथीन. कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ? इथीन. यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ. So that is nothing but unsymmetric. Sorry, this is the unsaturated hydrocarbon. यहाँ पे unsaturated hydrocarbon फॉर्मेशन हुआ. हमारा एक्चुअल रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ था. So that is nothing but ethyl amine. So ethyl amine, if it is react with what? Actually the reaction is starting from here. If we are having the tertiary amine is there. So that is the types of the tertiary amine. If it is reacted with the CH3Cl or CH3Br in presence of silver hydroxide, the types of the product is nothing but CH2 double bond CH2. It is formation of the ethene and side product यहाँ पे हमारा मिलेगा. This is nothing but trimethyl amine. So this is the product formation of, it is nothing but a unsaturated hydrocarbon and such types of the reaction. इस types के reaction को कहते हैं, this is a Hoffman. This is nothing but what?
Huffman exhaustive. This is nothing but Huffman exhaustive elimination reaction. The types of the reaction is nothing but Huffman exhaustive elimination reaction. So यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ? HEE, इस रिएक्शन को कहते हैं ही रिएक्शन. This is nothing but Huffman exhaustive elimination reaction. इसके अकॉर्डिंग नीट JEE की बात करेंगे तो कैसे टाइप्स के यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं. सपोज टर्शियरी अमाइन, how many mole of methyl halide or how many moles of alkyl halide is required to formation of the quaternary ammonium salt. तो यहाँ पे 1 मोल की जरूरत है. यहाँ पे कभी सेकेंडरी अमाइन लेते. फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन हम यहाँ पे चेंज करेंगे. कौन सा रिएक्शन कैसा चेंज करेंगे? सपोज हमारे पास कौन सा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेते? सेकेंडरी अमाइन लेते. इफ यू वांट टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हमको कभी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है. सपोज हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है. दिस टाइप्स ऑफ द कंपाउंड इज देयर. हियर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट? इट मस्ट बी बीटा कार्बन एटम. इसमें बीटा कार्बन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. बीटा कार्बन पे बीटा हाइड्रोजन होना इंपॉर्टेंट है. सपोज यहां पे हम लेते हैं सेकेंडरी अमाइन. दिस टाइप्स ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज व्हाट? सेकेंडरी अमाइन. दिस सेकेंडरी अमाइन इज ट्रीटेड विथ व्हाट? CH3Br. यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि हफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन के लिए जब अल्कीन अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है तो कितने मोल अल्किल हलाइड यहाँ पे रिएक्ट किए जाते हैं? तो याद रखना है यहाँ पे 2 मोल लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इंटरमीडिएट जो है वो कौन सा मिलेगा? क्वाटरनरी मिलना चाहिए. जब क्वाटरनरी प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्मेशन होता है तभी जाके बीटा एलिमिनेशन होता है. क्वाटरनरी अमोनियम फॉर्मेशन होता है तभी जाके बीटा एलिमिनेशन होता है. सो दैट इज नथिंग बट व्हाट? हियर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट नाइट्रोजन एटम CH3, यहाँ पे CH2 और ये CH3 ग्रुप एज इट इज है. बराबर है. यहाँ पे मेथिल ग्रुप आया. सो दैट इज नथिंग बट व्हाट? हाउ मेनी मेथिल ग्रुप इज हियर? देयर इज व्हाट? 2 methyl group is here. This required the 2 methyl group. Then formation of what? क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अब यहाँ पे देखना है कि बीटा कार्बन होना चाहिए. बीटा कार्बन इसीलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ से वो प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा. जैसे प्रोटॉन यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद कौन बनेगा? बीटा. सो दैट इज नथिंग बट कार्बन आयन. यहाँ पे कार्बन आयन फॉर्मेशन होना ये इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने के लिए एलिमिनेशन प्रोडक्ट होना चाहिए. सो व्हाट हैपन हियर? दिस इज नथिंग बट बीटा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन. अब यहाँ पे देखना है कि बीटा कार्बन एटम यहाँ पे है. बीटा कार्बन से यहाँ से बेस ने क्या किया? प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट किया. बीटा एलिमिनेशन हुआ, कार्बन आयन फॉर्मेशन हुआ. जैसे यहाँ पे कार्बन आयन फॉर्मेशन होता है तो देखना है कि एलिमिनेशन होता है. क्यों होगा यहाँ पे एलिमिनेशन? बिकॉज ऑफ दिस टाइप्स ऑफ द नाइट्रोजन एटम इट वांट्स टू द स्टेबल. यहाँ पे ये नाइट्रोजन एटम अनस्टेबल है. अब ये क्या होगा? ये कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. इस कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. क्यों ब्रेक होगा? बिकॉज ऑफ दिस नाइट्रोजन वांट्स टू द स्टेबल. यहाँ पे ये क्वाटरनरी है, साल्ट के फॉर्मेशन में है. क्वाटरनरी है, साल्ट के फॉर्मेशन में है. तो यहाँ पे लास्ट प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे. सो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2. तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्किन फॉर्मेशन हुआ और साइड प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा मिलेगा ट्राइमेथिल अमाइन. सो दिस इज नथिंग बट part of the product. This is the product of Huffman exhaustive elimination reaction. जैसे कि यहाँ पे हम थर्ड टाइप्स ऑफ द रिएक्शन देखना चाहेंगे, दिस टाइप्स ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे पर्टिकुलरली JEE की और IIT की हम बात करेंगे. सो दैट इज द JEE IIT की बात करेंगे. तो ऐसे टाइप्स के आपको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिए जाते हैं. सो दैट इज द कंपाउंड इज विच कंपाउंड हैविंग व्हाट? अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. इट मस्ट be nitrogen containing 5 member as well as 6 member
साइक्लिक कंपाउंड इफ यू आर हैविंग दो, अब यहाँ पे देखना है कि ये अमाइन कौन सा है, सेकेंडरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन से हमको क्या फॉर्मेशन करना है, देयर मस्ट बी क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, यहाँ पे क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट फॉर्मेशन होना चाहिए। ये एक खासियत है हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन की। तो यहाँ पे देखना है सेकेंडरी अमाइन है तो आपको यहाँ पे कितने मोल्स लेना चाहिए, 2 मोल्स लेना चाहिए। कौन, CH3, चाहे तो आप CH3CH2Br ले सकते हैं, यहाँ पे हमको यहाँ रिएक्शन में एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट, व्हाट हैपन, ethyl bromide is reacted with water, these types of the reactant molecule, this is nothing but secondary amine। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो ये रिएक्शन कंडीशन यहाँ पे दी है, ethyl bromide is reacted with the secondary amine सिल्वर हाइड्रोक्साइड, किसके प्रेजेंस में, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, सो दैट इज द स्टार्टिंग प्रोडक्ट, द फर्स्ट रिएक्शन इज टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे देखना है this contain nitrogen contain the lone pair of electrons having tendency what, nucleophilic, इसका टेंडेंसी न्यूक्लियोफाइल है, क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। कौन से कार्बन के ऊपर, नॉट दिस कार्बन, ऑन दिस कार्बन एटम एंड द लास्ट ऑफ दिस Br एटम विद दिस हाइड्रोजन एटम। कितने मोल लेना है, 2 मोल लेना है। जैसे हम 2 मोल लेते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन है, CH2 CH3 CH2 CH3, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा, इट एक्ट एज इंटरमीडिएट ऑफ हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन। कौन सा रिएक्शन, हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन। अब ये बेस बोल के यहाँ पे काम करेगा, इंटरनल रिएक्शन होगा। रिएक्शन में एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, दिस कैरीज अ न्यूक्लियोफिलिक नेचर, दिस कैरीज अ इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। अब यहाँ से ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा वाला, ये बीटा वाला, ये बीटा वाला, कितने बीटा है, यहाँ पे 4 बीटा है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, which types of the carbon which are having the more acidic in nature। अब यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा कार्बन ज्यादा एसिडिक है, ताकि बेस वहां से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। सो दैट इज 2 कार्बन। ये देखो, ये 2 कार्बन एटम है, ये 2 कार्बन एटम से बेस प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। इसमें से कौन सा कार्बन पे बेस प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये दोनों भी कार्बन का नेचर सेम है। why this is say, because of this types of the compound is a symmetrical, and whenever the compound is a symmetrical, there is a no doubt to abstract the proton from any types of the carbon atom। तो यहां से बेस प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, कौन बनेगा, कार्बन आयन बनेगा। अब जहां से बीटा कार्बन आयन बना, अब हमको यहाँ पे पता है कि बीटा कार्बन आयन जैसे ही फॉर्म होगा, बीटा एलिमिनेशन होगा। तो रिएक्शन में, नीट एग्जाम में, सीटी एग्जाम में ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन, इट इज द पार्ट ऑफ अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन, गामा एडिशन, बीटा एडिशन। सो दैट इज द पार्ट ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होता है, इसके तरीके का और एक रिएक्शन होता है। सो दैट इज द वन ऑफ द पार्ट ऑफ द रिएक्शन, सेट-सेफ एलिमिनेशन। कौन सा रिएक्शन, सेट-सेफ। यहाँ पे सेट-सेफ एलिमिनेशन, इसको सेट-सेफ भी बोलते हैं, जेड-सेफ भी बोलते हैं। इन 2020 में नीट के यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। सो दैट इज व्हाट, दिस विच टाइप्स ऑफ द एलिमिनेशन अंडरगोज द बीटा एलिमिनेशन। तो यहाँ पे हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन में भी बीटा एलिमिनेशन होता है। कौन सा एलिमिनेशन होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द types of the product is obtained, generation of alkene unsaturated hydrocarbon। तो यहाँ पे हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, this types of the product is obtained, this is nothing but what, formation of the unsaturated hydrocarbon। So these are the हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा एक पहला रिएक्शन कंप्लीट होता है, रिएक्शंस ऑफ अमाइंस का। इन कंटिन्यूएशन ऑफ वी विल सी अगेन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज द रिएक्शंस ऑफ अमाइंस। इट मे बी एलिफेटिक अमाइंस एज वेल एज एरोमेटिक अमाइंस।